वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी आलमगीरियत का सकाफत और मईशत पर असर इसके पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन करेंगे। शुरू करते हैं जी। ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म दैट वी often hear especially in discussions about how the world is becoming more interconnected. Globalization is the process by which countries, economies, and cultures become interconnected and interdependent through increased communication, trade, and exchange of ideas. इस पैराग्राफ के ये अभी पैराग्राफ मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन इस पार्ट के मीनिंग्स देखते हैं जी। ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत टर्म इस्तिलाह स्पेशली खास तौर पर इंटरकनेक्टेड बाहम जुड़े हुए प्रोसेस अमल इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर इन्हिसार इंक्रीज्ड बढ़ा हुआ कम्युनिकेशन इबलाग एक्सचेंज तबादला ख्याल। Globalization is a term that we often hear. आलमगीरियत एक इस्तिलाह है जो हम अक्सर सुनते हैं, especially in discussions about how the world is become more interconnected. खास तौर पर इन मुबासों में जहाँ ये बहस होती है कि दुनिया के बाहमी रवाबित बढ़ते जा रहे हैं। Globalization is the process by which countries, economies and cultures become interconnected and interdependent. आलमगीरियत एक ऐसा अमल है जिसके जरिए ममालिक मईशतें और सकाफतें एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे पर मुनहसर हो जाती है। थ्रू इंक्रीज कम्युनिकेशन ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज मवासिलात तजारत और ख्यालात के तबादले के जरिए। It involves the integration of markets, technologies, and policies, leading to a more connected and interlinked world. This means that events or trends in one part of the world can have significant impact elsewhere. It is hard to identify an exact time when globalization began, but it can be traced back in history and sorted systematically to create a timeline. This is useful for understanding when nations started to foster relationships with one another. वर्ड्स मीनिंग देखते हैं जी। इन्वॉल्व शामिल होना, इंटीग्रेशन अदगाम, पॉलिसीज क़वायद ज़वाबित, लीड टू नतीजा निकलना, ट्रेंड रुझान, एग्जैक्ट ठीक या दुरुस्त, ट्रेस खोज निकालना, सॉर्ट ज़ुमराबंदी करना, सिस्टमैटिकली नज़्मो तरतीब से। It involves the integration of markets, technologies and policies leading to a more connected and interlinked world. इसमें मार्केटों, टेक्नोलॉजीज और पॉलिसियों का इंजाम शामिल है जिससे एक ज़्यादा मरबूत और वहम जुड़ी हुई दुनिया बनती है। This means that events or trends in one part of the world can have significant impact elsewhere. इसका मतलब है कि दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाले वाक़यात या रुझानात दूसरी जगहों पर नुमाया असर डाल सकते हैं। It is hard to identify an exact time when globalization began. ये दुरुस्त वक्त की निशानदेही करना मुश्किल है कि आलमगीरियत कब शुरू हुई, but it can be traced back in history and sorted systematically to create a timeline. लेकिन इसे तारीख में तलाश किया जा सकता है और टाइमलाइन बनाने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दिया जा सकता है। This is useful for understanding when nations started to foster relationships with one another. ये समझने के लिए मुफीद है कि जब कौम ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना शुरू किया। Advances in technology, transportation and communication have accelerated this process, making it easier for people and goods to move across borders. Globalization has opened up new markets for the Pakistani products. We export textiles, rice and sport goods to countries all over the world. This has helped boost up our economy and create jobs. Additionally, foreign companies have invested in Pakistan, bringing in capital and technology that have improved our industries. मीनिंग देखते हैं जी। इन्वॉल्व शामिल होना, इंटीग्रेशन अदगाम, पॉलिसीज कवायद ज़वाबित, लीड टू नतीजा निकलना, ट्रेंड रुझान, एग्जैक्ट ठीक या दुरुस्त, ट्रेस खोज निकालना, सॉर्ट ज़मराबंदी करना, सिस्टमैटिकली नज़्म तरतीब से। Advances in technology, transportation and communication have accelerated this process. टेक्नोलॉजी नक़्ल-ओ-हम्ल और मवासिलात में तरक्की ने इस अमल को तेज़ किया है, making it easier for people and goods to move across borders.
लोगों और सामान के लिए सरहदों के पार मुंतकिल होना आसान बनाना। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपनड अप न्यू मार्केट्स फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तानी मसनूआत के लिए नई मंडियां खोल दी हैं। We export textiles, rice and sport goods to countries all over the world. हम दुनिया भर के ममालिक को टेक्सटाइल, चावल और खेलों का सामान बरामद करते हैं। This has helped boost up our economy and create jobs. इससे हमारी मईशत को फ़रोग़ देने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने में मदद मिली है। Additionally, foreign companies have invested in Pakistan. मज़ीद बरआं गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। Bringing in capital and technology that have improved our industries. जिससे वो सरमाया और टेक्नोलॉजी ले आए हैं जिसने हमारी सनतों को बेहतर बना दिया है। ये था जी हमारा आज का पहला पैराग्राफ। कल हम इंशाल्लाह अगला पैराग्राफ देखेंगे। शुक्रिया।